Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Cornesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will discuss or we will revise the FAQ, that is frequently asked questions of economics, that is the story of village Palampur. So we will discuss all the very short answer type of questions, higher order thinking skills, value based and source based questions in this video lectures. So let's start to discuss the short answer type of questions which are of 3 marks and which are frequently asked questions in the examinations. So dear students, first one I am going to discuss to all of you. So be attentive and pay your rapt attention towards my words so that you can make out and you can be familiar with the questions which are frequently asked in examinations. So first one is the highlight the basic constant in raising productions from a farm. So dear students, what are the basic constant in raising productions from a farm? खेत से जो है उत्पादन जो शीलता को जो बढ़ाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है. सो डियर स्टूडेंट्स, द बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग प्रोडक्शंस ऑन अ फार्म from a farm are first one, the land area under the cultivation is practically fixed. जो लैंड एरिया है यानी भूमि का जो क्षेत्र है उत्पादन के लिए वह क्या है, स्थिर है. There has been no expansion in land area under cultivations after 1960s. By then, some wastelands in the village had been converted to the cultivable land. पालमपुर में जो है 1960 के जो है दशक तक जो है वहाँ की जो है उत्पादन करने वाली जो भूमि है उसमें कोई विस्तार जो है नहीं हुआ है और तब से जो है कुछ जो बंजर भूमियाँ हैं उनको जो है अथक प्रयास और परिश्रम से जो है खेती करने योग्य जो बनाया गया. There is no further scope to increase the farm productions by bringing new land area under cultivation as no new land is available. और कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि जो उपजाऊ भूमि है अनकल्टिवेबल लैंड है उनको जो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाए. डियर स्टूडेंट्स, second questions which we are going to discuss. Our second question is explain the term physical capital, mention its different types with examples. So dear students, as I have explained you while explaining the chapters that there are two kinds or two types of physical capital. First one is the fixed capital and second is the working capital. So physical capital is the capital that is further used in productions of more goods such as tools, equipment, machines and raw materials. तो भौतिक पूंजी वह पूंजी है जिसका प्रयोग हम उत्पादन प्रक्रिया में हर एक स्टेज पर करते हैं, जैसे टूल्स हुआ, इक्विपमेंट्स, मशीन एंड रॉ मटेरियल्स. So the two types of physical capitals are fixed capital and working capital. Fixed capital, it is that capital which can be used over and over again. This capital lasts for a longer time, such as machine building and tool. So machine building and tools are called the fixed capitals. Working capital, it consists of those goods that are used up in the process of production such as raw material and money. वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जिसके अंतर्गत जो है उत्पादन प्रक्रिया के हर एक स्टेज पर जो है इसकी आवश्यकता जो पड़ती है. सो इट कंसिस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस. उत्पादन की प्रक्रिया में जो इसकी प्रयोग पड़ता है, बार बार जरूरत पड़ती है, सच एज रॉ मटेरियल एंड मनी. सो रॉ एंड मटेरियल एंड मनी आर considered as or the working capital. Okay, raw material and money are working capital. Now give three reasons why small farmers have to arrange capital by borrowing. तीन कारण बताएं कि क्यों किसानों को, छोटे छोटे जो किसान हैं उनको जो है पूंजी के यानी कि के लिए पैसे बड़े जमींदारों से, साहूकारों से जो है उधार लेने पड़ते हैं. So dear students, the three reasons why small farmers have to arrange capital by borrowing are:
इसके 3 प्रमुख कारण यह हैं: टू बाई सीड्स एंड वाटर फॉर इरिगेशन, खेतों में जो है बीजारोपण करने के लिए और खेत की सिंचाई करने के लिए ये पैसे जो है क्या करते हैं, उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। टू पे बैक द लोन विद द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो जो लोन अमाउंट लिए रहते हैं उसका जो है जो ब्याज होता है उसको चुकाने के लिए भी जो है पैसे जो है बोरो करते हैं। टू यूज़ द मनी फॉर मैरिज और फेस्टिवल्स, विवाह और त्यौहार वगैरह के लिए भी जो है पैसे क्या करते हैं, बोरो करते हैं। दे बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर फॉर दिस पर्पज। नाउ डियर स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन। खरीफ और रबी सीजन में क्या अंतर है? खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। डियर स्टूडेंट्स, खरीफ सीजन is identified with the rainy or wet season, whereas Rabi season is identified with the winter or dry seasons. Crops are sown in June and July and harvested in the November and January. Dear students, Kharif season crops are sown in the June and July and harvested in November and January, whereas Rabi season's crops sown in the month of October and November and harvested in the April and May. The examples of Kharif crops are jowar and bajra. Jowar and bajra are the example of Kharif crops which are grown in the rainy seasons, and wheat is an important Rabi crop which is grown in the winter season. Now dear students, state the importance of growing more than one crop on a piece of land. यानी कि जो भूमि है, एक ही भूमि पर जो है अधिक से अधिक जो है फसल उत्पादन करने के जो है क्या क्या महत्व है। लेट्स नो अबाउट इट। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज नंबर 1, इट रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की उर्वरकता को जो बढ़ाता है। नंबर 2, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी पीपल थ्रू आउट द ईयर, पूरे जो वर्ष लोगों को जो है यानी कि रोजगार में के अवसर जो प्राप्त होते हैं। इट बेनिफिट्स द फार्मर्स इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से किसानों को इससे लाभ पहुंचता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज: नंबर 1, इट रिटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Number 2, it generates the employment for many people throughout the year. And number 3, it benefits the farmer economically. Next questions, what is the multiple cropping? बहुविध जो है फसल उत्पादन क्या है? How does it help in farmers prosperity? ये किसानों की को समृद्ध बनाने में कैसे सहायक है? Let's know about it. When 2 or more crops are grown on a given piece of land during a year. प्यारे विद्यार्थियों, जब 2 या 2 से अधिक फसलों का जो है एक ही जो है भूमि पर जो क्या किया जाता है, वो उपज किया जाता है, grown on a given piece of land during the year, it is known as multiple cropping. तो इसे multiple cropping बहुविध जो फसल कहते हैं। This is the most common way of increasing productions on a given piece of land. यानी कि जो भूमि हमारे पास है, प्राप्त भूमि में जो अधिक से अधिक उत्पादन करने का ये बहुत आम तरीका है। Raising 2 or more crops from a given piece of land in a year translates into a corresponding increases in the farmers' income and helps in farmers' prosperity. इस तरह से जो है जो फार्मर्स जो होते हैं उनके जो आय में, किसानों की आय में जो है वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप जो है उनकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्स मोर इनपुट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। डू यू एग्री विद दिस? यानी कि आधुनिक जो खेती है का जो तौर तरीका है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगता है लघु विनिर्माण के जो अपेक्षाकृत जो है, या औद्योगिक केंद्रों में जो वस्तु निर्माण होता है उसके अपेक्षाकृत। डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इससे सहमत हैं? लेट्स नो अबाउट इट। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर द रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, यानी कि जो आधुनिक कृषि पद्धति है, ये वैज्ञानिकों के जो है दशकों से के रिसर्च का, अनुसंधान का परिणाम है।
This research was in the form of the high yield varieties of seeds. अच्छी उन्नतिशील किस्म के जो बीजों के ऊपर जो है रिसर्च अनुसंधान किया गया। इरिगेशंस जैसे सिंचाई इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर ऑल प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री। इन सब का उत्पादन जो है इंडस्ट्री में ही होता है। द रिजल्ट इज दैट विद द ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आधुनिक कृषि पद्धति में का जो परिणाम जो है निकला, बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड एंड मैनीफोल्ड। इससे क्या हुआ, खेती और जो औद्योगिक केंद्रों का इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भरता जो है पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ा। What do you mean by green revolutions? Why was it caused? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे? तो dear students, green revolutions means a rapid and sustained increase in the output of the agriculture over a long period. Green revolution मतलब क्या हुआ कि लगातार अनवरत खेतों में जो है कृषि के जो है माध्यम से कृषि से अधिक जो है उत्पादन कर पाना। इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया इन द लेट 1960, 1960 के दशक में ये क्रांति जो है प्रारंभ हुई भारत में। द आउटपुट ऑफ द फूड ग्रेन्स इंक्रीज मेनी फोल्ड। इससे क्या हुआ, खाद्य समस्या जो है दूर हुई। इनिशियली द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज लिमिटेड ओनली टू द व्हीट क्रॉप। सबसे पहले जो है गेहूँ की उपज में जो है बढ़ोतरी हुई, बट लेटली इट स्प्रेड टू द अदर क्रॉप्स लाइक राइस एंड ऑयल सीड्स। इट वाज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ मॉडर्न methods like high yield varieties of seeds, chemical fertilizer and insecticides. Now dear students, land being a natural resources is necessary to be careful used. Why? जो लैंड भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है और इसका हमें उपयोग जो है बड़े सावधानी से करना चाहिए। क्यों? लेट्स नो अबाउट इट। लैंड अ नेचुरल रिसोर्सेज इज सब्जेक्ट टू डिग्रेडेशंस। डियर स्टूडेंट्स, land a natural resources is a subject to degradation due to negligence. Piece of land are being degraded, they have become barren and uncultivable. This is due to over utilizations of fertilizer in order to increase the yield with the higher cost of productions. Groundwater resources are also depleting faster. The farmers need to dig deeper in order to get water. Chemical fertilizers kill bacteria and other microorganisms in the soil and make it unfit for cultivation. All this indicates that land, a fixed asset, is under deep stress. Now dear students, what can be done to increase the non-farm activities in the Indian village? भारत में जो है नॉन फार्मिंग यानी गैर कृषि क्रियाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? Dear students, the things which can be done to increase to non-farm activities in Indian village are, भारतीय जो है गाँव में गैर कृषि कार्यों को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए या जो कुछ किया जा सकता है वो ये हैं। Number 1, banks should provide loans at low interest rates so that poor village can start some small scale business and can earn their livelihood. बैंक को इसके लिए जो है यानी कि लो इंटरेस्ट पे रेट पे गरीब जो है किसानों को, गरीब जो है गांव वालों को जो है लोन देना चाहिए ताकि वे इस पैसे से छोटा मोटा जो है बिजनेस जो है स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे पैमाने पर बिजनेस जो है व्यवसाय में डाल सकें और अपनी जीविका चला सकें एंड कैन अर्न देयर लिवलीहुड। नंबर 2, गवर्नमेंट शुड इनिशिएट इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल कोर्सेज एक्सेट्रा। सरकार को भी जो है रोजगार को जो है बढ़ावा देने वाली जो है योजनाएं, जैसे कि छोटे छोटे जो है कुटीर उद्योग, छोटे इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षण जो है केंद्र,
और जो है रोजगार मूलक शिक्षा के जो है कोर्स वगैरह ये सब प्रारंभ करने चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द विलेजर्स इन डिफरेंट स्किल, और गांव के जो है ग्रामीण लोगों को जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट स्किल्स यानी हुनर का सिखाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेलिंग ऑफ लोकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑफ द विलेजर्स इन द सिटीज। सरकार को ऐसी भी योजना निकालनी चाहिए जिससे जो गांव वाले जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं यानी स्थानीय रूप से जो बनाई गई जो वस्तुएं हैं उसे जो है ले जाकर जो शहरों में कस्बों में बेच सके। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन टू increase the non-farm activities in the Indian village. Now, dear students, describe 3 features of a small-scale manufacturing as a non-farming activity in Palampur. पालमपुर में जो 3 small manufacturing industries हैं उनके 3 features यानी 3 विशेषताएं क्या क्या हैं? Let's know about it. Dear students, small-scale manufacturing in Palampur is carried out to supplement the earning of people. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है पालमपुर में इसका किया जाता है ताकि लोगों का जीविका जो और अच्छे से चल सके, अतिरिक्त आय भी इससे लोगों को हो जाती है। द फ्यूचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर आर, पालमपुर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लघु विनिर्माण जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एंड एम्प्लॉय सिंपल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक सिंपल मशीन इक्विपमेंट एंड टूल्स। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी स्मॉल स्केल एंड एम्प्लॉय सिंपल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक सिंपल मशीन्स इक्विपमेंट एंड टूल्स। नंबर 2, रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर जनरली लोकली अवेलेबल। जो रॉ मटेरियल के अच्छे माल जो है छोटे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो लोकली जो है अवेलेबल होते हैं। दे आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड एट होम विद द फैमिली लेबर, और ख़ासकर लोग इसे अपने घर पर या जो खेतों में जो है ऐसा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है डाल लेते हैं और खुद मिलकर जो है श्रम करते हैं। रियरली पीपल्स आर हायर्ड फॉर इट। दोज इंडस्ट्रीज सेल देयर प्रोडक्ट्स लोकली और इन नियर बाई विलेज, और वे इन उत्पाद को जो है स्थानीय रूप से यानी लोकल एरिया में या फिर जो है बगल के जो है गाँव में ले जाकर जो बेचने का कार्य करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ डिफाइन द मीनिंग एंड एम ऑफ प्रोडक्शंस। उत्पादन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा इसका क्या उद्देश्य है? तो डियर स्टूडेंट्स, या फिर इसकी क्या परिभाषा है? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कार फ्रॉम स्टील। प्रोडक्शन उत्पादन क्या है? किसी भी वस्तु के जो है उसकी उपयोगिता को जो है बढ़ाना जो है, जैसे स्टील से जो है कार बनाना। उद्देश्य क्या क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य जो है उन जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करना है जिसकी हमें जो है जरूरत है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं के उत्पादन और सेवा के लिए जो प्रमुख 4 कारक हैं। फर्स्ट वन इज द लैंड, सेकंड इज द लेबर, थर्ड वन इज द फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज द ह्यूमन कैपिटल। यानी कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ये जो है 4 आवश्यक जो है कारक हैं। दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शंस। नाउ मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। परंपरागत जो है कृषि की जो विधियां जो हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल सीड्स विद लो यील्ड वेयर यूज्ड। परंपरागत जो कृषि है, ट्रेडिशनल मेथड इन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, लो यील्ड वेयर यूज्ड यानी कि पुरानी जो है बीज जो का प्रयोग किया जाता था। काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर्स वेयर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, यानी कि काउ डंग यानी को गाय का जो गोबर होता है वो गोईठा उपला जिसको बोला जाता है, एंड नेचुरल मैन्योर्स और प्राकृतिक खाद का जो प्रयोग किया जाता था एज ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर के रूप में। लेस इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड, और इसके लिए पानी की भी सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी।
यानी इससे सिंचाई के लिए पानी भी कम लगता था। सो दीज वेयर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन विलेज पालमपुर। द farmers have already the things he need not to buy the things outside from. These were the less these were not much more expensive. Next questions, explain the problems which arise due to the unequal distributions of land. वे कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में बताएं जो भूमि के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती हैं। So dear students, economic inequality, unequal distributions of land leads to the economic inequality, यानी कि भूमि का असमान जो वितरण है इससे जो है आर्थिक विषमता को जो है पैदा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी बढ़ती है। पॉवर्टी एंड हंगरी, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अवसर न प्राप्त होने के कारण लीड्स टू द पॉवर्टी एंड हंगरी, इससे जो है गरीबी और भुखमरी यानी कि ये भी जो है वो बढ़ावा मिलता है, ये भी बढ़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस डिस्क्राइब द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो मानव पूंजी है उत्पादन प्रक्रिया में इसका क्या भूमिका है। नेम 2 इन्वेस्टमेंट दैट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, 2 निवेश का नाम बताइए जिससे जो है मानव पूंजी की क्वालिटी बढ़ती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल कैन बी बिल्ट ओनली इन द लॉन्ग रन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव पूंजी को जो है बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड पीपल्स हु पुट टुगेदर लैंड कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स। मानव जो पूंजी होता है उसके अंतर्गत जो है शिक्षित प्रशिक्षित वे लोग जो होते हैं जो कि भूमि पूंजी और जो है श्रम यानी कि उत्पादन के कार्यों का प्रयोग करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। Dear students, now farmers of which 2 states were the first to use modern farming methods? Modern farming methods in India, mention any 4 positive effect of it. Dear students, farmers of which 2 states, किन 2 जो है राज्यों के जो है लोगों ने किसानों ने जो पहले सबसे पहले आधुनिक कृषि पद्धति को जो है अपनाया भारत में, और इसके 4 जो है सकारात्मक प्रभाव के बारे में जो पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बताएं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वे आर द फर्स्ट टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो है आधुनिक कृषि विधि को जो है अपनाने वाले जो है राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। ये जो है राज्य हैं जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है आधुनिक कृषि विधि को अपनाया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ लैंड, इससे भूमि के उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ी। इट इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस इन द कंट्री, इससे खाद्य समस्या का भी हल हुआ, अधिक से अधिक जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ। इट ब्रॉट्स द ग्रीन रिवोल्यूशंस इन द 1960, इससे हरित क्रांति का आगमन हुआ, प्रारंभ हुई। which resulted in high increase in the productions of cereals, grain and particularly wheat and rice, मुख्य रूप से जो गेहूँ और चावल की जो खेती में जो है इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुआ, वृद्धि हुई। इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड सिक्योरिटी, और खाद्य संरक्षण में भी इसने अपनी जो है सुरक्षा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो अपनाई। इट हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इससे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिला। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ राइट 3 डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। भूमि और पूंजी के बीच में 3 प्रमुख अंतर क्या क्या हैं। द फर्स्ट वन, लैंड, इट इज़ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, यह उत्पादन का स्थिर कारक है। कैपिटल, इट इज़ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, यह मानव द्वारा निर्मित जो उत्पादन का कारक है। लैंड, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यह प्रकृति द्वारा निःशुल्क यानी प्राप्त जो है उपहार है। इट इज़ अ नॉन मेड सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ये
मैन मेड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मानव निर्मित जो है उत्पादन का स्रोत है। लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी, भूमि की उपजाऊ भी हो सकती है, अनुपजाऊ भी हो सकती है, तो उर्वरक क्षमता अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। इट इज़ टू टाइप्स, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, जबकि जो पूंजी होती है दो तरह की होती है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। Okay dear students, the example of fixed capital are land, building and tools, and the example of working capitals are raw material and cash in hand. That's all. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. Wish you all the best for examinations.